Hare Krishna, everyone. Hare Krishna viewers. Brahma Murari Tripurantari Bhanu Shashi Bhumi Suto Budusche Gurusche Shukra Shani Rahu Ketve Purvantu Sarve Mamsu Prabhatam। आज हमने रेमेडीज की बात करनी है, तो सबसे पहले हमें ग्रहों को भी नमन करना चाहिए। Hanji. So let's start the session. So good afternoon, viewers. Hare Krishna to all. So today, uh, my colleague Aarti Kapoor and I welcome you all on behalf of Maharishi College of Vedic Sciences. So today's topic of discussion is about the remedies of the planet, how to strengthen them. Now, for that, let us see what actually remedies are. So, remedies are the antidotes which helps to nullify the negative effect of the planet or any other negative aspects in our life. वो जो रेमेडीज होती हैं, जैसे किसी बीमारी में मेडिसिन्स काम करती हैं, उसी तरह हमारी रेमेडीज काम करती हैं. So our astrology is all karma based. Our karmas can either be good or bad. So there are three categories of karmas. हमारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारे कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध एंड क्रियामान. So whatever karmas we have done in our previous life, that will manifest in this lifetime. There is no running away. हम इनसे भाग नहीं सकते हैं. So the best thing is that to experience the pain, learn from our experiments, and then only the true healing will start. Now, the best thing in astrology is that it offers remedies. अब according to some astrologers या कई लोगों का ये view है कि our destiny is prefixed. It cannot be changed. हाँ, up to some extent it is. Our destiny is prefixed. But we have a free will also. हम अपने free will से, by doing some remedies and doing good karmas, we can change our destiny. अब जैसे कि for example, it's a sunny day and आपको घर से बाहर निकलना है, तो आप कुछ धूप को रोकने के लिए नहीं कर सकते, but you can carry an umbrella with you. तो आप उससे आप हीट स्ट्रोक से बच जाओगे. So similarly, remedies भी हमारी ऐसी ही काम करती है. So अब there are different kind of remedies. So remedies are done through mantra chanting, through yantra. आपकी डोनेशंस होती हैं, आपके रुद्राक्ष होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं. तो वो कैसे काम करती हैं? जैसे मंत्रास है. मंत्रास क्या है? दे आर बेसिकली द साउंड वाइब्रेशंस डन फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट. सो अब उसमें क्या है? बाय चैंटिंग दोज मंत्रास वी बिकम वन विद दैट एनर्जी. हम उस एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं अपने अंदर, and it helps us to get rid of the negative effect of the planets. इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. Then we have yantras. So yantras क्या है? वो एक पवित्र जियोमेट्रिक सिंबल्स हैं जो कि एक डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं. They are used for meditation, prayers and chanting of the mantras. Then we have Rudraksh. So it is one of the most precious beads which has a great healing power. And it is said that those who are blessed from Lordship, they only get a chance to wear the Rudraksh. तो रुद्राक्ष क्या करता है कि वो हमारे आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर देता है. Then we have gemstones. So they are recommended for strengthening of the planets. अगर आपके कुछ planets weak हैं तो उसको strengthen करते हैं so that we can get good effects. Then we have charities. So it is helpful in getting rid of any negative issues in our life. Negative अगर health issues आ रही है या negative कोई planet negatively आपका operate कर रहा है, so it is helpful in that. और इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तो there are few days in our lunar calendar which promote us to donate. So donation, charity really works. In the end, I will say that remedies do work,
but if done with the good intentions. So now I will request my colleague Aarti Kapoor to enlighten us more about the remedies. आज हम यहाँ पर आए हैं रेमेडीज के लिए। मेरा और रश्मि जी का ये टॉपिक लेने का सबसे जरूरी जो था हमारा ये था कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग जाते हैं जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना ऐसी रेमेडीज बता देते हैं जो कि उनको लगता है कि भी अभी हम इस समय इतने परेशान हैं और इतने पैसे खर्च करना, इतनी पूजा कराना, ये हम कैसे करें। तो कभी कभी उनका जो है ना एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा विश्वास भी हट जाता है कि भाई वहां जाने का मतलब तो ये है कि हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो आज हम लोग ऐसी रेमेडीज पर बात कर रहे हैं जिसके लिए ना तो आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा और ना ही पैसा। आप अपने डेली रूटीन में, अपने रिलेशनशिप में अच्छा करके आप वो रेमेडीज कर सकते हो। ग्रह हमें ये नहीं कहते कि आप अलग से हमें बहुत टाइम दो। जो ग्रह हमसे चाहता है, जो प्लैनेट हमसे चाहता है, अगर हम वैसा भी करें तो भी हमारे प्लैनेट्स जो है ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि रश्मि जी ने बताया अभी कि हम लोग ज्यादातर जो रेमेडीज हैं वो मंत्र पे या दान पे या जेम स्टोन्स वगैरह पे देते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स हैं वो तो जानते हैं कि हमें किन ग्रहों का दान करना है, किन का नहीं। क्योंकि जैसे हमारे जो हॉरोस्कोप में हमारे लिए जो प्रीशियस प्लैनेट्स होते हैं, हमें उनका दान नहीं करना चाहिए, हमें उनका मंत्र करना चाहिए। इसलिए जो लोग नहीं जानते, तो वो एक सेफ रेमेडी होती है सभी मंत्रों की। जितने भी हमारे 9 के 9 मंत्र ग्रह हैं, उनके जो मंत्र हैं वो आपको बहुत आराम से यूट्यूब पे मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी अच्छा दिन देखकर और उस दिन के हिसाब से आप स्टार्ट करें और 108 टाइम आप मंत्रा चैंटिंग करें, तो वो बहुत ही अच्छा उपाय होता है। क्योंकि जितना भगवान का नाम लेंगे हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए आप मंत्रा चैंटिंग सबसे सेफ है, वो करें। और जो जेमस्टोन्स है वो मैं बहुत कम रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि नॉर्मली एक तो जेमस्टोन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरा क्या होता है कि 90% कुंडलियों पर जेमस्टोन फिट नहीं बैठते। सिर्फ 10% हॉरोस्कोप्स पे ही जेमस्टोन ठीक बैठते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जिनको आती है वो जानते होंगे कि कई बार जेमस्टोन्स पे कोई हमारा प्लैनेट ऐसा है जो कि एक राशि त्रिकोण में है या एक 6 से 12 में है, तो वो हमारा एक हाउस तो बेटर करेगा लेकिन दूसरी तरफ वो हमको प्रॉब्लम भी देगा। और दूसरी बात, इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से हम लोग इनको बहुत ज्यादा रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि इनका जो काम है, अगर बृहस्पति के लिए आप केले की जड़ पहन लें या आप शनि के लिए शमी का पौधा है उसकी जड़ पहन लें, तो ये भी बहुत काम करते हैं अगर आप जेमस्टोन्स नहीं भी पहनते तो आज हमारा मेन मकसद है ऐसी रेमेडीज बताना। तो सबसे पहले मैं सूर्य से स्टार्ट करूंगी। जैसे मान लीजिए जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो भी जान सकते हैं कि हमारा कौन सा स्टार अच्छा है और कौन सा खराब। फॉर एग्जाम्पल सन है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत इश्यूज आते हैं या फादर से कम बनती है या उसको बोन्स में बहुत इश्यूज रहते हैं, बोन्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, इम्यूनिटी बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सन ठीक नहीं। तो उसके लिए उसको बहुत कुछ नहीं करना, वो अपने पिता की रिस्पेक्ट करे, सुबह उठकर अपने पिता के पांव छुए और पिता तुल्य लोगों की भी रिस्पेक्ट करे, तो उसका सन बहुत अच्छा हो सकता है। कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना। और ये तो हमें अपने रिलेशंस को ठीक करके ही सूर्य को ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा कई बार अगर किसी के फादर दूर हैं या फादर नहीं है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, तांबे के बर्तन में आप रात को पानी रखें और दिन भर आप वही पानी पिए। और सूर्य को जल देना तो सभी जानते हैं। और इसके अलावा आप कभी महीने में एक रविवार आप गुड़, तांबा और गेहूं ये आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा सन के लिए बहुत अच्छी ये रेमेडी है कि आप जिसका सन खराब है वो ये ध्यान रखे कि अपने ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी वो बाथरूम ना बनाए। और इसके लिए हम विष्णु जी को गुड़ का दलिया भी दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, आपका सन अच्छा होगा।
अब हम आते हैं मून पर। मून क्या है? मून हमारी माता है। अगर आप अपनी माता की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कहना मानते हैं, अच्छे से उनकी इज्जत करते हैं, वो खुश हैं आपसे, तो आपका मून समझिए बहुत अच्छा है, और अच्छा हो जाएगा अगर अच्छा नहीं है। इसके अलावा मून के लिए आप अपने माता के पैरों की मिट्टी लेंगे और माथे पे लगाएं, तो उससे भी आपका मून बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा वही मैंने आपसे कहा, अगर किसी की मदर दूर है या नहीं है, तो आप शिवलिंग पर चांदी का चंद्रमा चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर आप गंगा जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर ही आप चांदी का बुरादा भी चढ़ा सकते हैं। तो उससे भी जो है आपका मून जो है वो बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं मंगल पर। हम सभी ग्रहों की बात करेंगे। मंगल के लिए बहुत अच्छा उपाय है, आप अपने ब्रदर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखें, तो मंगल आपका बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा मंगल के लिए अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं, तो मंगल उससे बहुत ही अच्छा होता है। और कई जगह आपने देखा होगा, लंगर वगैरह लगते हैं, वहां पर आप चाकू छुरियां ये सब भी अगर दान करते हैं, तो उससे भी आपका मंगल बहुत अच्छा होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या आप जो मीठा पान होता है, 4 मंगलवार आप हनुमान जी को दें, तो उससे भी आपका मंगल बहुत अच्छा होगा। ये जो हमारे आपको मैं बता रही हूँ जितनी भी रेमेडीज, ये हमारी ट्रायल एंड टेस्टेड है, और इनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, इसीलिए हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आ जाता है मरकरी। अगर आपका मरकरी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो नॉर्मली बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, या आप कह सकते हो कि मरकरी होने से जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारी लर्निंग पावर थोड़ी कम हो जाती है, तो इंटेलिजेंस ऐसी को शो प्रॉब्लम, करता है। हाँ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब आपका मरकरी ठीक नहीं है। सॉरी, मैंने मून के लिए नहीं बताया। मून में भी कई बार क्या होता है, जिनको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस रहता है, बहुत जल्दी से टेंशन में आ जाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कई लोग लॉक करते हैं फिर से दोबारा देखने आते हैं लॉक हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उनका मून ठीक नहीं है। तो वो खुद ही पहचान सकते हैं कि हमारा मून ठीक नहीं है। ऐसे ही मरकरी को, जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, या जिनको ऐसा लगता है कि जहां मेरी बुद्धि काम करनी चाहिए वहां नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि उनका मरकरी जो है वो ठीक नहीं है। तो मरकरी क्या होता है? मरकरी हमारी बहन और बेटियां होती हैं। तो आप अपनी, जैसे पहले के समय में बोला जाता था बहन बेटियों को खाली नहीं भेजना चाहिए, तो ऐसे ही मरकरी है, हमें अपनी बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारे घर में आए, हमें बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए। तो उससे आपका बुद्ध बहुत अच्छा होता है और आपका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। आप ये ध्यान करना, कभी भी चेक करना, जहां बहन बेटी बुआ का बहुत रिस्पेक्ट होता है, वहां पर काम और बिजनेस उन लोगों का बहुत अच्छा होता है। और ऐसे ही बृहस्पति है। बृहस्पति के लिए, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक फीमेल के लिए आप कह सकते हो पति का कारक है, बच्चों का कारक है, पैसे का कारक है। तो बृहस्पति को ठीक करना तो बहुत जरूरी है। और बृहस्पति कैसे ठीक रहता है? जितनी आप अपने गुरु और गुरु तुल्य लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, आपका बृहस्पति अच्छा होगा। अगर आपको गुरु है जो, आप उसका पीठ पीछे बुराई करते हैं या गुरु के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो आप अपना गुरु खराब कर लेते हैं। और गुरु आपको कभी नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि गुरु खराब हुआ तो आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गुरु के लिए भी आप अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करें। और इसके अलावा आप गुरु के लिए मंदिर में पंडित को पंचांग दान में दे सकते हैं। उसके अलावा जो राम नाम की शॉल होती है वो आप पंडित जी को दे सकते हैं। और अपने जो कुल पुरोहित हैं उनको आप थोड़ा सा सोना दान कर सकते हैं। तो ये सब भी अगर आप बृहस्पति के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब है शुक्र। शुक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुक्र के लिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने पार्टनर की, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितनी भी आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं, या कोई भी आपके फीमेल कुलीग्स हैं, कोई भी, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वाइफ हो, ज्यादातर जो आपके फीमेल फ्रेंड्स और वाइफ हैं उनके लिए स्पेशली, अगर आप लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका जो वीनस है, जो शुक्र है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
आपको हाँ उसके जी। लिए और और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आजकल तो आरती कपूर जी, मैं तो कहूंगी एवरीबडी इज आफ्टर वीनस, क्योंकि वीनस से ही हमें मनी मिलता है। बिल्कुल तो एंड आई हैव सीन, ये मेरा मैंने कुछ देखा है कि वैसे तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि पैसा नहीं है, पैसे से प्रॉब्लम है, एंड एट द सेम टाइम दे आर अब्यूजिंग देयर वाइफ्स। तो बिल्कुल फिर वो शुक्र खराब ही हो रहा है ना, तो एक तरफ से पैसा कहाँ आएगा उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको शुक्र के लिए ये करना है। और उसके अलावा शुक्र अच्छा करने के लिए आप अपनी वाइफ को परफ्यूम दे सकते हैं। आप पार्वती माता की पूजा करें और आप काली गाय की सेवा करें। तो इन सब से भी आपका शुक्र जो है वो बहुत अच्छा होता है। अब आता है सैटर्न। शनि से बहुत लोग परेशान भी रहते हैं, लेकिन शनि जो है वो हम बूढ़े बुजुर्ग लोगों को दिखाता है और हमारे सर्वेंट्स। अगर शनि की दशा हो, ढैया हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर आप लोग बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं और आपके यहाँ जो काम करते हैं, अगर आप उनको अच्छे से रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो कभी भी शनि आपको परेशान नहीं करे। और इसके अलावा शनि के लिए आप सब लोग बहुत से उपाय जानते ही हैं, लेकिन एक ये है कि सैटरडे के दिन आप ब्रेड पकौड़े या समोसे उसको आप सरसों के तेल में तलें और आप लेबर क्लास को अगर वो खिलाएं, तो बहुत ही अच्छा उपाय है ये शनि का। और इसके अलावा सैटर्न के लिए जितना भी हो सके आप अपने लेबर के लिए करें। हाँ, एक बात मैं सैटर्न के लिए जरूर कहना चाहूंगी। मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग शनिवार को शनि मंदिर में जाते हैं और वहां पर वो प्लेट ले लेते हैं जिसमें लोहा और ये सब दाल वाल होती है और वो शनिदेव को चढ़ाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये कभी भी ऐसा ना करें। शनिवार के दिन ही आप लोहा, काली दाल ये सब खरीद रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, तो ये आपको गुड इफेक्ट की बजाय आपको नेगेटिव इफेक्ट देता है। इसके लिए आप ये सामान शनिवार वाले दिन नहीं, उससे पहले खरीद के रखें और उस दिन आप चढ़ाएं। सेम डे आप वहीं से खरीद के वहीं चढ़ा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना। तो ये आप इसका जरूर ध्यान रखें। और इसके अलावा राहु केतु है। राहु जो है वो आपको मालूम है, एक तो वो स्वीपर्स को दिखाता है। आप जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं इनको कुछ डोनेशन दें, इनसे अच्छा रिलेशन रखें, अच्छे से बात, रिलेशन मीन्स अच्छे से बात करें, उनका डिसरिस्पेक्ट ना करें। और इसके अलावा राहु जो है वो हमारे ससुराल पक्ष को भी दिखाता है। अगर आप अपने ससुराल के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं तो भी आपका राहु बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा राहु का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप गंगा स्नान करें। वैसे तो 9 गंगा स्नान लगातार बोले हैं एक अंतरदशा के लिए, अगर आप करें तो राहु आपका बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा खाटू श्याम जी की आप जितनी पूजा करेंगे आपका राहु उतना ही बेहतर होगा। और इसके अलावा मैंने एक बहुत अच्छा उपाय और भी देखा है कि अगर आप जैसे एरावत होते हैं जिनके पास हाथी होते हैं, अगर आप एक पीतल की घंटी उनको दें और आप बोले कि उनके गले में बांध दो, तो उससे भी आपका राहु कंट्रोल होता है। और अब है केतु। केतु जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने रिलेशंस को बेस्ट करें तो ग्रह अच्छे होते हैं। मैंने अभी आपसे कहा अगर आप सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने पिता की रिस्पेक्ट करें। तो ऐसे ही अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप केतु अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी दिखाता है। तो आप अगर अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो भी आपका केतु अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रह चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहें। और केतु के लिए इसके अलावा केतु ध्वजा है। आप मंदिर की चोटी पर बुधवार के दिन अगर कोई ध्वजा लगाते हैं, या सफेद काला कुत्ता है उसको आप दूध पिलाते हैं, या सफेद काला कंबल जो होता है वो भी आप जो है कहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं किसी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में, तो उससे भी आपका केतु अच्छा होगा। तो ये तो खैर हमारी एक जर्नल रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं। और इसके अलावा तो रश्मि जी, ये तो हमने ग्रहों की रेमेडी बता दी। हाँ जी। लेकिन इसके अलावा भी लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या मैरिज में आपको पता है लेट मैरिजेस हो रही हैं, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। और सबसे ज्यादा आजकल मेरे पास डिप्रेशन और इंसोमिया के केसेस आ रहे हैं, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी हो जाती है। हेल्थ इश्यूज आजकल जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, इट इज अबाउट फाइनेंस,
हेल्थ इश्यूज हो गए, स्ट्रेस हो गया, एंड आपके लोन्स हाँ लोन्स की बिल्कुल। आजकल एक्चुअली बहुत। में क्या है ना, सबने आजकल जो है गाड़ी हो, टीवी हो, मकान हो, लोगों ने क्या है इंस्टॉलमेंट्स पे ली हुई है। हाँ जी। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंस्टॉलमेंट ना पे हो पाए, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। हम्म, तो आप थोड़ा सा जरा इसके बारे में, इन रेमेडीज के बारे में, जर्नल रेमेडीज हैं, इसके लिए आपको होरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं। जिसको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो खुद से बिना एस्ट्रोलॉजर से गाइड किए भी आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें एक मैं बताना चाहूंगी, एक रेमेडी है। अगर हम जैसे लोन्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल जैसे आपने बोला कि एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल, ईएमआईज पे हर कोई चीजें खरीदता है, और स्पेशली द यंग जनरेशन, एंड देन फिर वो आते हैं कि हमारी जितनी भी सैलरी है वो हमारी ईएमआईज में ही जा रही है। तो एक इसकी मैं रेमेडी आपको बताऊंगी, और ये जो रेमेडी है, दिस इज गिवन बाय माय गुरुजी। तो मुझे लगता है जो हमको गुरुजी से मिली है हमारी जो है रेमेडीज, दे रियली वर्क वेरी परफेक्टली, बहुत इफेक्टिव होती है वो। तो अब इसमें क्या करना है कि आपने जैसे लोन लिया, तो आप चूज करो सैटरडे का दिन। सैटरडे के दिन आपने देखना है कि आपका जिस दिन मूवेबल लगन राइज हो रहा हो। सो हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब आपका 1, 4, 7 एंड 10 लगन उदय हो रहा है, चार लगन और जो है हमारे। क्या लगन जब उदय हो रहा है, एंड जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो अपने एस्ट्रोलॉजर से या अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं कि शनिवार के दिन कब ये वाले लगन उदय होंगे, और हमारी जो ये लगन है दे राइज फॉर 2 2 आवर्स। तो उस टाइम पे अगर आप अपनी पार्शियल पेमेंट रीपेमेंट कर दो लोन की, तो बहुत जल्दी आपको इससे रिलीफ मिलता है। और रश्मि जी, अगर पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही अगर उसमें करें तो ज्यादा ही बेहतर है, मुझे हाँ लगता है। जी। हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करें तो आगे बहुत जल्दी जल्दी उतर जाएंगे, बट अब जो ऑलरेडी उसमें है उनके लिए भी ये आगे कर सकते हैं। आगे से ऑलवेज रिमेम्बर, आपने लोन लिया है तो जब उसको आपने रीपे करना है तो ये वाले डेज चूज कर लो। सेकंड, और ये भी बहुत इफेक्टिव है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, डे देखना है ट्यूसडे एंड सैटरडे। और जिस दिन ट्यूसडे और सैटरडे हो मंथ में, और आपकी जो लूना तिथि की मैं बात कर रही हूँ वो हो चतुर्थी या चतुर्दशी, दैट इज 4th एंड 14th, लेकिन मैं हिंदू कैलेंडर के लूना तिथि के हिसाब से बात कर रही हूँ। नहीं, उस सॉरी दिन, रश्मि जी, चतुर्थी और चतुर्दशी, हाँ जी, हाँ और जी। इसमें हमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष तो नहीं नहीं, देखना? नहीं, नहीं, तो आप कोई भी 4th, जो चतुर्थी एंड चतुर्दशी आप देख लीजिए, उस दिन आप लोन अपना रीपे करें, तो आपके बड़ी जल्दी जल्दी आपके लोन्स उतरते हैं। फिर एक और है, इसमें ये थोड़ी टेक्निकल है, सो इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है। इसमें क्या करना है, ये नक्षत्र बेस्ड है। तो आपने देखना है कि हमारा मून, अब जो मून है हमें पता है कि एवरी डे इट चेंजेस इट्स नक्षत्र, 27 दिन में 27 नक्षत्र से वो ट्रांजिट करते हैं। तो आपने चूज करना है जिस दिन मून आपका अश्विनी नक्षत्र में है, और जिस दिन मून अश्विनी नक्षत्र में है उस समय, उस दिन आप एरीज लगन जब उदय हो रहा है, वो वाला आप टाइम चूज करो फॉर 2 आवर्स, और उसमें अपनी रीपेमेंट, जो पार्शियल रीपेमेंट है उस दिन करो। सेकेंडली, जिस दिन आपका अनुराधा नक्षत्र हो, और अनुराधा नक्षत्र के लिए आपने स्कॉर्पियो लगन जो है आपका, वृश्चिक लगन, वो होना चाहिए। तो आप ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली रेमेडीज बहुत काम, दे आर वेरी, होते हुए मैंने देखा है, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इससे आपकी जल्दी जल्दी लोन्स उतरेंगे। फिर और रेमेडीज हमारे पास तो बहुत सारी हैं, बट हम जो आजकल के जो एवरीडे के जो क्वेरीज आती हैं हम वो ही लेकर आए, एंड द सिंपल वंस टू डू। तो फिर रश्मि जी, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया, ये सब भी लोगों में बहुत है, तो थोड़ा हाँ सा जी, आप इन रेमेडीज पर भी बताएंगे? हाँ जी। जैसे आजकल जो है फोबिया, एक तरह का स्ट्रेस, एवरी अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस। तो अब उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो अगर किसी को किसी तरह का फोबिया है लाइफ में, या आपकी रेमेडीज है, मतलब उसके लिए क्या रेमेडी है, कि अब हम हमारा जो फोबिया या स्ट्रेस है दैट इज ऑल रिलेटेड टू मून।
हमारे मून से रिलेटेड है, चंद्र से रिलेटेड है। और हम सबको पता है कि मून को सिर्फ शिव जी ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन्हीं का सहारा लेंगे। तो उसमें क्या करना है, आपने शिवलिंग पे जाना है और वहां पर जल अर्पण करना है। तो जब आपकी जल की धार शिवलिंग के ऊपर जा रही है, साथ में आपने मंत्र बोलना है महामृत्युंजय का। और इससे क्या होगा कि जब आप जल आप अर्पित कर रहे हो शिवलिंग पे और साथ में ये मंत्र बोल रहे हो, तो व्हाट इज हैपनिंग, आप शिवलिंग से जो एनर्जी है वो अपने अंदर आप लेकर आ रहे हो। एंड हियर द वाटर इज द कंडक्टर। वाटर बहुत जल्दी एनर्जी को अपनी अंदर ले लेता है, तो हम वो पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। एंड डू इट फॉर 40 डेज। आप में बहुत अंदर चेंज दिखेगा। किसी टाइप का फोबिया है, स्ट्रेस है आपके अंदर, सो उससे बहुत एक रिलीफ मिलता है। रश्मि जी, अभी किसी का ये मैसेज आया है कि मंत्रा कौन सा चैंट करना है उसमें, जैसे जब शिव जी पे जल देते हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय, हाँ। हाँ जी, महामृत्युंजय ओम आप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम मामृतात्। हाँ ये जी, महामृत्युंजय मंत्र है, आपको मिल जाएगा, तो यही आपको चैंट करना है। हाँ और जी, वैसे भी रश्मि जी, शिवलिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि हर ग्रह जो है उससे ठीक हो सकता है। हाँ हम जी, कुछ भी रेमेडीज ना करें, अब सूर्य के लिए अगर हम शिवलिंग पर चंदन लगाएं, चंद्रमा के लिए हम दूध चढ़ाएं, मंगल के लिए आप शिवलिंग पर शहद लगाएं, बुध के लिए आप बेल पत्र चढ़ाएं, बृहस्पति के लिए आप चने की दाल भीगी हुई लगाएं, और शुक्र के लिए आप दही चढ़ाएं, शनि के लिए आप धूप दीप दिखाते हैं, तो शनि भी उससे बहुत बढ़िया हो जाते हैं शिवलिंग पर। हाँ और जी, राहु केतु के लिए आपने देखा होगा शिवलिंग पर एक नाग देवता भी लगे होते हैं कॉपर के, आप उन नाग देवता पे जल चढ़ाएं, तो राहु केतु भी ठीक हो जाएंगे। एक शिवलिंग जो है वो 9 के 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। और हाँ रश्मि जी। जी, बाकी अब आप वो बताएं जरूर, शादी की जो रेमेडीज है, क्योंकि आजकल लोगों की लेट मैरिजेस हो रही हैं, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, शादी की भी मैं बताती हूँ। अभी जैसे हम इसकी कर रहे थे, तो अभी इंसोम्निया की भी पहले, बिकॉज हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, हाँ। तो आजकल लोगों को इंसोम्निया की बहुत प्रॉब्लम है। अब हाँ। इंसोम्निया क्या है, यू अब दो तरह से होता है। एक तो आपको नींद आती ही नहीं है, दूसरा यू डोंट वांट टू स्लीप। बहुत डिस्ट्रैक्शंस है आजकल, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। फिर आजकल हमारी वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स है, सब उसी में ही रात रात तक। एंड आफ्टर कोविड सबके नींद के पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। तो एंड अब इफ यू डोंट गेट टू स्लीप फॉर 7 आवर्स, तो वो आपके हेल्थ पे भी आपके असर करता है। तो उसके लिए कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज है, अगर आप करें तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है एंड यू गेट अ वेरी गुड स्लीप। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने गीत गोविंद का नाम सुना होगा, दैट यू कैन गेट ऑन यूट्यूब। छोटा सा ही गीत है, तो इसको तो जगन्नाथ जी भी सुनकर सोते हैं। तो बिफोर स्लीपिंग ये आप सुन लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी एंड योर माइंड विल बी रिलैक्स। सेकेंड है, आप क्या करें, इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी। एंड स्पेशली जो बच्चे होते हैं जो बहुत हाइपर होते हैं, छोटे बच्चे जिनको नींद नहीं आती है, तो उनके लिए भी आप कर सकते हो कि टेक अ वाइट हैंड की, और उसके अंदर आपने ग्रीन कलर की मोटी सौंफ डालनी है। बिकॉज व्हाइट हैंड की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मून को, और ग्रीन जो सौंफ की जो मैं बात कर रही हूँ वो हमारा बुध है। सो आपने उसको टाई करके अपने पिलो के नीचे रख देना है। अब आपने क्या किया, दोनों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को, दोनों को शांत कर दिया। तो इन दो चीजों की वजह से ही आपको नींद नहीं आती है। मेन तो मन और बुद्धि हाँ दोनों ही जी, परेशान करती हैं किसी भी चीज के लिए, हाँ जी, और मन को कंट्रोल करना तो सबसे मुश्किल काम है। हाँ जी। तो बस आपने उसको टाई करके आपने अपने पिलो के नीचे उसको रख दीजिए, सो इट विल रिलैक्स यू। बहुत अच्छी आपको नींद आएगी देन। और और ये रश्मि जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक्चुअली में ये एंजाइटी और इंसोम्निया, हम्म, इसकी वजह से ही लोगों को बहुत ज्यादा फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। हाँ जी, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी मुझे एक रेमेडी याद आई थी, हम्म, कि जैसे अगर कई लोगों को शनि की साढ़े साती है, डहिया है, या किसी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आती है,
तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि उसके लिए हमें क्या करना है, सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग, दिन निकलने से पहले 4 बजे के बाद, 4 साढ़े 4 के बीच में हमें मंदिर जाना है, और वहां पीपल का जो वृक्ष है उसके साथ मतलब हमें पूरा लिपटा लेना है अपने आप को, ऊपर से नीचे तक अपना सर भी टच करना है उससे, और हमको ये बोलना है कि पीपल देवता आप हमारी सभी परेशानियां ले लो और हमें सुखी करो। और ये हमें 3 शनिवार लगातार करना है। तो इसमें लेडीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर पीरियड्स वगैरह की जब उनको प्रॉब्लम हो तो उन दिनों में उनको नहीं जाना, वो इस तरह से शुरू करें कि उनके 3 वीक्स उसमें कंप्लीट हो जाएं। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है इसमें। और इसलिए अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपको तीसरे हफ्ते में जाने से पहले पहले ही हेल्थ में काफी आराम आने लग जाएगा। हाँ जी। तो रश्मि जी, आप वो बीच में रह गई हमारी मैरिज की, बताएं, आप बड़ी अच्छी रेमेडी बताते हैं आप वो भी। हाँ जी, मैरिज की क्या है, अभी अभी जैसे हम यही बात कर रहे थे, मेरी ये बात रहेगी कि जब हम स्लीप की बात कर रहे हैं, पहले मैं ये अपना कंप्लीट कर लूं। हाँ हाँ, सॉरी। तो इसमें क्या है कि एक जस्ट मेक श्योर, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके आसपास हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, चार्जर्स हैं, उनको अपने पास ना रखें, उसको थोड़ा दूर रख दें, बिकॉज दे ऑल रिप्रेजेंट राहु। तो उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। और एक, जब आप सो रहे हो, सो एक पोजीशन भी आपकी जो होनी चाहिए, दैट एक करेक्ट होनी चाहिए। आपका जो हेड है दैट शुड नॉट बी फेसिंग द नॉर्थ, एंड पैर साउथ की तरफ नहीं होने चाहिए। अवॉइड स्लीपिंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दैट वेज वी आर इनवाइटिंग यम। ये एक शव आसन है ये वाला, जो सोने का आपका डायरेक्शन है। सो दिस वे वी आर हार्मिंग अ लॉन्जेविटी ऑल्सो। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एंड दूसरा, एक आपका सोने से ही मैं बता रही हूँ, कईयों को प्रॉब्लम होती है नींद में चलने की। हम्म। आपने अगर आपको याद हो, हमने ये किसी को रेमेडी दी थी, एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये वाली रेमेडी। तो इसमें अगर इफ सम पीपल दे हैव अ हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द स्लीप, अब देखा जाए तो दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल। आपके कई एक्सीडेंट हो सकते हैं इसमें। सो इसके लिए क्या है कि आपने द्वादक्षरी मंत्र आता है, तो जो द्वादक्षरी मंत्र है वो डायरेक्टली आपके 12th हाउस से कनेक्टेड है। तो आपने ये मंत्र का जाप करना है, और ये जो मंत्र है इसको हम ऐसे चैंट करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आई रिपीट अगेन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस माला को आपने 4 बार, मतलब 4 मालाएं इसकी, 108 टाइम्स एक माला होती है, आपने 4 टाइम्स इसको रिपीट करना है। तो एंड रश्मि जी, अगर ये कई कई लोग 4 टाइम ना कर सके तो एक बार भी कर सकते हैं या 4 टाइम करना जरूरी है? नहीं, इसको ना 4 टाइम्स इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो जितने भी द्वादक्षी मंत्र होते हैं उनका ये होता है कि इफ जितने भी वर्ड्स हैं उसमें, अगर आपने देखा तो इसमें 4 वर्ड्स हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जितने भी उसमें वर्ड्स होते हैं उतने टाइम्स ही वो माला करनी चाहिए। अगर आप एक एक गो में नहीं कर सकते हो तो आप, वैसे तो अच्छा है इफ यू डू इट इन अ वन गो, नहीं कर सकते हो आप ब्रेक करके दिन में कर लो। तो इससे बहुत ही इट इज वेरी इफेक्टिव। एंड साथ में मेडिकली भी आप दिखाओ, बट लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा। रश्मि जी, वैसे भी आपने देखा होगा, जब भी राहु का गोचर 12th हाउस में होता है तो ये इंसोमिया और ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना, कई बार फॉर द टाइम बीइंग भी लोगों को बहुत आती हैं जब तक ये गोचर रहता है। हाँ जी। तो उसके लिए मुझे लगता है उस समय थोड़ा राहु की भी रेमेडीज कर लेनी जरूरी रहेंगी। हाँ जी, तो ये भी राहु को ट्रीट करता है, ये वाला जो मैंने मंत्र बोला हाँ है। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा शादी के लिए हाँ जी। तो मैरिज की है कि दिस इज, ये अगेन दिस रेमेडी इज ऑल्सो गिवन बाय माय गुरुजी। तो ये डिलेड मैरिजेस के लिए है। तो यहाँ पर कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं ये पढ़ रही हूँ कि कौन सा मैंने गीत बोला था फॉर इंसोम्निया, तो वो है गीत गोविंद। आपको ये नेट पे मिल जाएगा, छोटा सा गीत है। ठीक है। फिर ये है मैरिज से रिलेटेड, अगर डिले मैरिज हो रही है तो
बॉय और गर्ल दोनों के लिए है। तो इसमें क्या है, हमने पीपल के पेड़ की हेल्प ली है, क्योंकि कहते हैं कि पीपल के पेड़ में ही विष्णु जी का वास होता है। एंड कोई भी शुभ काम हमको अपनी लाइफ में विष्णु जी की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो पाते हैं हमारे। तो दिस रेमेडी, दिस हैज टू बी डन बाय द पेरेंट्स। तो इसमें क्या करना है, चाहे लड़की के चाहे बॉय या गर्ल के पेरेंट्स ने मंदिर में, जो मंदिर की प्रेमिसेस में पीपल का पेड़ हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंदिर के आसपास का जो पीपल का पेड़ है वहां से यू नीड टू गेट द रेड मड, वहां से आप मड लेकर आइए। चाहे थोड़ी सी, आपने इसमें पीपल के पेड़ की जड़ को नहीं खराब करना है, वी आर नॉट टचिंग, हम उनको स्पॉइल नहीं कर रहे हैं। आपने वहां से मड लेकर आनी है और एक गिव इट टू द पॉटर, एक छोटा सा पॉट बनवाना है। अगर ज्यादा मिल जाती है गुड, नहीं मिलती है थोड़ी सी ले आए, बाकी वो अपना क्ले उसमें ऐड कर दे। और फिर उसके बाद आपने वो जो पॉट बनेगा, सो जिसकी शादी नहीं हो रही है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, उसने 51 डेज के लिए उस पॉट में पानी भर के आपने पीपल के पेड़ में अर्पित करना है, और साथ में आपने मंत्र बोलना है, ओम भगवते नमः। आई रिपीट, ओम भगवते नमः। सो दिस हैज टू बी डन फॉर 51 डेज। और फिर उसके बाद जब आपके 51 डेज पूरे हो जाते हैं, उसके बाद रिपीट इट आफ्टर एवरी थर्सडे, थर्सडे को रिपीट करना है अंटिल यू गेट मैरिड। सो नहीं बड़ा रश्मि जी, है। सॉरी, मैं ये बात कहना चाह रही थी आपसे कि अभी देखिए आजकल बच्चे जॉब में भी हैं और बिजी भी हैं। अगर वो डेली मंदिर ना जा सके तो कुछ ऑल्टरनेट भी है इसका कि तो इसको ऑल्टर देखो, करें? अगर पीपल के पेड़ पे करो तो बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ये है कि गेट अ तुलसी प्लांट। एक तुलसी का पौधा ले आओ घर पे, वो तो हर किसी के घर में होता है। एंड फिर उसमें आप वो उसी मिट्टी के घड़े से उसमें आप जल दीजिए। तो ठीक। इसका ऑल्टरनेटिव एक ये है। और रश्मि जी, शादी के लिए एक रेमेडी मैं भी बताना चाहती हाँ हूँ। जी। ये भी हमारे गुरुजी ने हमें बताई थी कि आप लोगों ने देखा होगा कि वृंदावन में एक कात्यायनी देवी मंदिर है, वहां का सिद्ध पीठ है, वो कात्यायनी देवी मंदिर है वृंदावन में। आप हम्म। वृंदावन में ही एंटर करोगे तो थोड़ी ही दूरी पे है। तो जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही या किसी कपल की मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग अगर वहां जाके माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, तो जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाती है बहुत जल्द। और जिनकी कपल की आपस में प्रॉब्लम है तो वो भी काफी हद तक ठीक हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि हर लोग भी कात्यायनी देवी मंदिर जरूर जाएं, बहुत मान्यता है वहां की। और इसके अलावा गौरी जी का एक मंत्र है जो विवाह बाधा में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओम ह्रीम मंगले गौरी विवाह बाधम नाशाय स्वाहा। ओम ह्रीम मंगले गौरी विवाह बाधम नाशाय स्वाहा। आप इस मंत्र का भी 108 टाइम चैंट करेंगे तो भी अगर विवाह में कोई बाधा है या विवाह के बाद आपस में कोई बाधा आ रही है तो भी आपकी ये दूर होगी, क्योंकि गौरी माता का आशीर्वाद मिलना विवाह के लिए बहुत अच्छा। हाँ जी। तो रश्मि जी आप आगे चलें, आप बताएं। जो हाँ एक गौरी रश्मि जी, वो आपने जो बता रहे थे ना, जैसे कई लोग को बेल नहीं मिलती या हाँ जी। हाँ वो जी। प्रॉब्लम हो जाती है कोर्ट केसेस में बेल नहीं हो रही, तो उसके लिए वो जो आपकी रेमेडी है कई जगह हमने दी है और बहुत जगह काम भी किया, तो आप हाँ बताइए जी। प्लीज। हाँ जी, तो ये बेल के लिए अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट है या बेल नहीं मिल रही है, जेल में है, तो उसके लिए, अब वो तो खुद जेल में है, तो उनके जो मदर है, उनकी सिस्टर, उनकी वाइफ, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो एक ये कर सकते हैं कि बर्ड्स को कैप्टिविटी से निकालें। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। आप ओके। जितने ही बर्ड्स को कैप्टिविटी से निकालेंगे तो उनका जो उनकी जो सोल्स है वो उस इंसान को हेल्प करेगी, एंड ही विल कम आउट ऑफ द जेल। और एक हनुमान चालीसा का पाठ फॉर 7 टाइम्स वो करे जो जेल में है। सो इट रियली हेल्प्स, बहुत इफेक्टिव है। और हेल्थ के लिए हम अभी बात कर रहे थे ना, तो मुझे भूल गया रश्मि जी, हनुमान बाहु का जो पाठ है अगर वो भी हम्म। करें तो बड़ी से बड़ी हेल्थ ट्रबल भी ठीक हो जाती है। हाँ और जी। अभी ना यहाँ पर किसी ने मैसेज करके पूछ रहा था कि किसी को गुस्सा बहुत आता हो हाँ तो जी। उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप जब शिवलिंग पर जाते हैं जल चढ़ाने, पहली हाँ। बात तो जो भी शिवलिंग पे जल चढ़ाता है अपना लोटा कभी खाली ना लाए।
शिवलिंग के नीचे आप लोटा रखें, उसमें 2-4 बूंद जल अवश्य लाएं और उसको पिएं। उससे आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। तो जो अभी किसी ने गुस्से के लिए बोला, अगर वो आप जल चढ़ाते हैं और वो जल लोटे में डाल के लाते हैं, उस व्यक्ति को पिलाएंगे, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा जो है वो कम होगा। और एक एंगर इश्यूज के लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी है। उसमें आपने क्या करना है, पंच अमृत तो सबने नाम सुना ही होगा। तो उसमें पंच अमृत इज 5 अमृत, तो वो 5 चीजों से बनता है। मिल्क, कर्ड, घी, शुगर, हनी। 5 चीजें हो गई। आई रिपीट, मिल्क, कर्ड, घी, शुगर और हनी। हाँ, आप और रश्मि जी, इसमें ना अगर गंगा जल मिलाओ तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, वो भी मिला लेना चाहिए पंचामृत में। ठीक है, तो इसमें आपने हैव इट एवरी डे, एक अपने दूध के कप में या कैसे भी, जस्ट हैव इट एवरी डे। या आपको बहुत शांत, आपके एंगर इश्यूज को बहुत शांत करेगा। एंड जस्ट डू इट फॉर 40 days, यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ। ये एंगर इश्यूज की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और और रश्मि जी, इसमें रेमेडीज में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी। हमारे प्रिंसिपल सर हैं रुद्रेश शास्त्री जी, उनके पिताजी हैं नारायण गुरु जी, बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं वो। तो आपको याद है हम लोग जब उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें स्पेशली कहा था कि कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो रेमेडीज वर्क करें, या आप अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो आपकी कही बात सच हो, आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी हो, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक मंत्रा पकड़ लें और उसकी चैंटिंग करें, उसको सिद्ध करें, उसको डेली उस मंत्र को करें, मेडिटेशन करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप कोई बात बोलेंगे तो वो बात आपकी पूरी होगी। और इसके अलावा आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। तो जब इंट्यूशन पावर, कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, हम किसी का होरोस्कोप देख रहे होते हैं तो हम कुछ बोल देते हैं और वो कहता है हाँ ये ठीक है और ऐसा हो गया, और बाद में हम लोग होरोस्कोप देखते हैं तो हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि ऐसा तो कि कोई हमने गया बोला है, क्यों था, ये हमें याद ऐसा ही नहीं हमने रहता पढ़ कि लिया हमने था। ऐसे। हाँ हाँ, जी, तो ये हमें याद नहीं प्रेडिक्शन रहता कैसे कि दे दी। हाँ कि ऐसा हमने कैसे बोला। तो इसके लिए मेडिटेशन और कोई मंत्र चैंटिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी रेमेडीज भी दूसरों को लगेंगी। ये नहीं कि ऐसी बुक से पढ़ के बोलते रहे, तो हर किसी की रेमेडी भी नहीं लगती। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात तो देखो ये है, अगर ऊपर वाला उसका भला चाहता होगा तो रेमेडीज जरूर वर्क करेंगी उसके लिए। और बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, हम लोग तो थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं एक और रेमेडी शेयर करना चाहूंगी। दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर दोज जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉर चाइल्डलेस कपल्स जिनका उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी की प्रॉब्लम, एंड उसकी वजह से नहीं चाइल्ड बेयर कर पाते हैं। सो आपने इसमें क्या करना है, आपने संतान गोपाल मंत्र जो है आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। नहीं, इट्स अ मैं वेरी। रश्मि जी बता भी देती हूँ, एक बार मंत्र बता देती हूँ, हाँ फिर जी। आप बताना। क्लीन देव की सुत गोविंदम वासुदेवाय जगत पते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम्यहम शरणम गतः। क्लीन देव की सुतः गोविंद वासुदेवाय जगत पते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम्यहम शरणम गतः। ये आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, मैंने आपको 2 बार बता दिया है। तो आप हमारा, हो सकता है हम ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें, तो आप उसमें भी इसको सुन के लिख सकते हैं। तो आपने ये क्या करना है कि अपना ये जो हमारा गोपाल मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो एक जब आप प्लान कर रहे हैं तो नहीं आपसे बाकी आप मेडिकली भी दिखाइए, बट साथ में ये वाली रेमेडीज करोगे तो बहुत ही अगर ज्यादा कोई इफेक्ट। भी आपको कंसीविंग में इश्यूज आ रहे हाँ हैं जी, तो आप हाँ जी, करेंगे रेमेडी। हाँ जी। तो आपने क्या करना है कि ये पूर्णमासी से शुरू करना है। तो एक कृष्ण जी का स्वरूप लेकर आइए, तो जिसमें कृष्ण जी अपनी गाय के साथ, काऊ के साथ खड़े हैं और साथ में बांसुरी बजा रहे हैं। सो ये एक बहुत ही शांत स्वरूप है कृष्ण जी का। और पूर्णमासी से आपने ये मंत्र शुरू करना है। इसकी रोज एक माला आपने, दिया जलाओ, घी का दिया जलाने के बाद रोज एक माला ये करनी है। अगर लड़की करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो हस्बैंड है ही कैन ऑल्सो डू। बट इसमें आपने ब्रेक नहीं लेना। जब
लेडी नहीं कर सकती है देन द हस्बैंड शुड डू, पर लेकिन इसमें ब्रेक नहीं लेकर आना, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये वाली रेमेडी। फिर एक और रेमेडी है मेरे पास इसी चीज के लिए, जिनको चाइल्ड बेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आपने महाकालेश्वर उज्जैन का तो नाम सबने सुना ही हुआ है, तो आपने वहां पर जाना है महाकालेश्वर उज्जैन में, अपनी अर्जी लगानी है, और आपने डे चूज करना है। पुत्रदा एकादशी आती है, तो आप ये पंचांग में देख सकते हो, दैट लक्ष्मी कम्स जी मेरे ख्याल दिसंबर जनवरी में होती हाँ, है ये। दिसंबर जनवरी में ही आती है। तो आपने वो वाला डे चूज करना है, उस दिन आपने उज्जैन में महाकालेश्वर के, बिकॉज शिव में ही शक्ति है आपके प्रारब्ध को चेंज करने की, तो वहां पर जाके आपने अपनी ये विश बोलनी है। सुबह की भस्म आरती जो होती है 4 बजे की, वो अटेंड करके आपने ये विश बोलनी है, तो आपकी जरूर सुनवाई होगी। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी, जो मैं वही रेमेडीज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ जिनको मेरे को बड़ा फेथ है जिनके ऊपर। वैसे भी रश्मि जी आजकल फाइनेंशियल इश्यूज के लिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हाँ और कई जी। लोग पूछ भी रहे हैं, तो एंड में मैं फाइनेंशियल इश्यूज के लिए एक मंत्र दूंगी बहुत ही अच्छा सा। हम्म क्योंकि देखो पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है, कई हम्म समस्याएं दूर कर देता है। हम्म तो वो इश्यू सबको बहुत ज्यादा रहते हैं, हम्म तो हम लोग एंड में मैं एक मंत्र है वो जरूर देके जाऊंगी फाइनेंशियल इश्यूज के लिए। हम्म। और आपके पास भी एक रेमेडी है बहुत अच्छी, तो आप हाँ भी जी। जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, तो वो अभी कर देते हैं हम। हाँ आप कर दीजिए, मैं एक क्लास में कर दूंगी फिर। अच्छा ठीक है, चलो जी। इसके लिए है, ये फाइनेंशियल इश्यूज के लिए है। अगर इफ यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल इश्यूज इन लाइफ, तो आपने क्या करना है, श्री सूक्तम का मंत्र है, इसके 16 मंत्र होते हैं। तो ये आपको किसी भी लक्ष्मी जी की बुक में, या आपको श्री सूक्तम, आपको ये भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब में। और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मंत्र है लक्ष्मी जी का। तो आपने इसमें अम, शुक्ल पक्ष के जब दिन होते हैं, जो ब्राइटर हाफ होता है, उस दिन से शुरू करना है। आपने एक श्री यंत्र लेकर आना है अपने पास। सो वी एज वी ऑल नो कि यंत्रों में बहुत शक्ति होती है, और श्री यंत्र तो लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, इट्स वेरी वेरी डियर टू हर। तो आपने श्री यंत्र, एक उसको आपने कच्चे दूध से उनको साफ करना है, नहलाना है, स्नान कराना है उनको। स्नान कराना है, और फिर उसके बाद आपने कुमकुम का और चावलों का तिलक लगा के उनको स्थापना करनी है अपने मंदिर में, लाल गुलाब अर्पित करना है। एंड श्री सूक्तम का जो 16 मंत्र है, वो आपने अपने साथ में आप प्योर घी का दिया जलाओगे, और गाय का प्योर में देसी घी गाय बहुत का हो बेस्ट है। तो बहुत अच्छा है। और आपने घी वहां पर जोत जलाई, एंड एक मंत्र, 16 मंत्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स। और आपने एक मंत्र बोलना है और एक घी का ड्रॉप डालना है, उसके बाद एक मंत्र बोलना है और फिर एक आपने घी का ड्रॉप डालना है अपने, ये 10 मिनट ही लेता है। सो अगर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, सो यू कैन डू इट एवरी डे, आप 40 डेज दो, इसको करो। और वैसे अगर आप एनहांस करना चाहते हो अपने फाइनेंस, फाइनेंस यू को। कैन डू इट एवरी फ्राइडे। सो आपको बहुत ही ज्यादा चेंज मिलेगा, मतलब फाइनेंसेस आपके बेटर ही होंगे। और रश्मि जी मैं ना थोड़ा सा वास्तु के बारे में भी हाँ बोलना जी। चाहूंगी। हाँ जी। हाँ जी, आपको तो क्योंकि वास्तु का आप रेमेडी साथ में जो है चार्ट हाँ के साथ देते हैं, तो फिर जरूर व्यूअर्स को बताओ कि हाउ डज वास्तु आल्सो वर्क्स। हाँ, देखिए ऐसा है कि वैसे तो मैं ये कहूंगी कि जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो वास्तु भी जरूर करे, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की रेमेडीज मिलाकर देते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को हेल्थ ट्रबल है, तो मतलब ये वाली तो मेरी दो तीन जो मेरी बहुत ज्यादा ट्रायल एंड टेस्टेड है वो मैं आपको आज यहाँ बताऊंगी। जैसे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक नहीं हो रही, बहुत परेशान है, तो आपके घर का जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, आप वहां पर उस व्यक्ति की रिपोर्ट्स रखिए, वहां पर उसकी मेडिसिन रखिए, और कांच की कटोरी में एक हल्दी का टुकड़ा रखिए, और कांच के ग्लास में आप पानी रखिए रात को। रिपोर्ट्स और मेडिसिन और हल्दी का टुकड़ा वहां रहने दीजिए, और जो पानी है वो रोज सुबह आप उस बीमार व्यक्ति को पिलाइए। तो आप देखिएगा 8 से 10 दिन के अंदर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा।
और इसके अलावा कई लोगों को कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम होती है, कई बार उनके झूठे केसेस हो जाते हैं या कोर्ट केसेस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे। तो उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी में तो जो हम रेमेडीज देते ही हैं, वास्तु में भी हम साथ में देते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आप एक अशोका पिलर लगाएं और आपके जो भी कोर्ट केस के जो पेपर हैं वो आप नॉर्थ वेस्ट में वो फाइल्स आप वहां रखें और अशोका पिलर लगाएं। तो आप देखिएगा कि कुछ ही समय में विद इन ए 40 डेज आपके केस जो है वो आपकी तरफ पॉजिटिव इंक्लाइन आपके केस का हो जाए। तो ये भी बहुत ही अच्छा जो है वो रेमेडी है। और नॉर्थ वेस्ट में कोशिश कीजिए जब आप वो फाइल रखते हैं तो वो ब्लू कलर के लिफाफे में हो तो और भी बेहतर है। और ऐसे ही रश्मि जी, जैसे कई लोगों को क्रैश क्रंच हो जाता है, कैश की प्रॉब्लम है, साउथ हाँ ईस्ट जी, में अच्छा वर्क करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि साउथ गवर्नमेंट ईस्ट इश्यूज है, हमारी शुक्र की ही हाँ बिल्कुल, जोन है। गवर्नमेंट इश्यूज आ रहे हैं, हम्म, आप ईस्ट को ठीक करें। अब कई बारी कई जगह आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आते हैं, किसी किसी घर में मैंने देखा है बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं या घर में आपस में बिल्कुल नहीं बन रही। तो वहां पर हम थोड़ा साउथ वेस्ट को ट्रीट कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, हाँ तो जी, उसमें बहुत ज्यादा उनको फायदा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो एक एस्ट्रोलॉजर जो है उसको वास्तु भी जरूर करना चाहिए और काफी उसमें फायदा होता है अगर साथ में आप वास्तु की रेमेडीज भी दे देते हैं। हाँ जी। और रश्मि जी, बाकी आप जो भी कोई और रेमेडी बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को। बस सब रेमेडीज तो आरती जी बहुत है। ये तो आज हमने जर्नल रेमेडीज आज शेयर करी हैं, बट ये जो रेमेडीज हमने शेयर किए हैं बहुत सिंपल, देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, बट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। एक जाते टाइम अब एक और मैं रेमेडी देना चाहूंगी। सो ये आपकी नक्षत्र बेस्ड रेमेडी है। तो इसमें हर इंसान किसी ना किसी नक्षत्र को बिलोंग करता है। सो हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो पता है। तो बाकी जो जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, सो वी ऑल बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर, एक हमारा नक्षत्र होता है। तो uh, जो हमारे नक्षत्र का 27th नक्षत्र है, तो जैसे कि अगर हमारा अश्विन नक्षत्र है तो हमारा जो 27th नक्षत्र होगा वो होगा रेवती। रेवती। अगर हमारा अनुराधा नक्षत्र है तो 27th नक्षत्र होगा हमारा विशाखा। विशाखा। तो 27 वो अब क्या वो हमारा अति मित्र होता है, वो वाला जो तो नक्षत्र है। रश्मि जी, जैसे इसमें आप ना कृष्णा जी का एग्जाम्पल दें तो हाँ लोगों को जी, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी। तो जैसे कि कृष्ण जी का जो नक्षत्र है, भगवान हमारे जो कृष्ण है उनका नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। वो रोहिणी नक्षत्र के थे। तो आपने देखा होगा कि वो उनके सिर पे एक पिकॉक का फेदर होता था। तो अब जो रोहिणी का 27th नक्षत्र है वो है कृतिका। अब कृतिका का जो बर्ड सिंबल है दैट इज अ पिकॉक। तो वो एक सिंबल अपने पास हमेशा कैरी करते थे। तो इसलिए जो भी आपका 27th नक्षत्र है उसका एक सिंबल, बर्ड का सिंबल, कोई भी एनिमल का सिंबल आप अपने पास रखो। सो इट विल रियली एक आपको सपोर्ट करेगा, एक आपको गाइड करेगा, हमेशा एक फ्रेंड बिल्कुल, की तरह हमेशा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि 27वां हमारा अति मित्र नक्षत्र है, तो हाँ उसका जी, कोई भी सिंबल अगर आप कैरी करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है हर चीज में। हाँ और जी, इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं जो, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। जैसे आपने देखा किसी भी व्यक्ति का 6th हाउस ऑपरेट कर रहा है दशा या अंतरदशा में। अब आप लोग ये जानते हैं कि जो 6th हाउस है वो लड़ाई झगड़े का, बीमारी का या कोर्ट केसेस का है, लोन का है। तो अब हम ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को बीमारी, कोर्ट केस या ये सब झगड़े में वो ना पड़े। तो आपको जैसे ही लग रहा है कि इसका 6th हाउस ऑपरेट होने वाला है, आप उसको बोले कि आप कोई ना कोई छोटा मोटा लोन है वो ले लें और उसकी किस्तें करा लें। क्योंकि हमें वो करना है जो हमारा प्लेनेट चाहता है, हमें वो करना है जो हमारा हाउस एक्टिव हो रहा है वो हमसे चाहता है। तो आप अगर बीमारी या लड़ाई झगड़ा आने से पहले आप ये कह देंगे कि आप एक छोटा सा लोन ले लो, तो वो हमारा 6th हाउस भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हमने लोन ले लिया। तो हम उस छोटे से लोन की छोटी छोटी किस्तें भरते रहेंगे, तो बड़े लोन या बड़ी प्रॉब्लम्स हमको नहीं आएंगी।
ऐसे ही 8th हाउस जो है वो मिजरीज का है। बट जो लोग इंजीनियर हैं या जो लोग आप समझिए कि रिसर्च वर्क में है, तो उनका अगर 8th हाउस एक्टिव है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन जो लोग ये सब नहीं करते, तो उनको जब 8th हाउस एक्टिव होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि आप जैसे ऑकल्ट है, ये भी 8th हाउस से है। एस्ट्रोलॉजी तो देखो ज्यादातर 9th हाउस से आती है, बट जैसे न्यूमरोलॉजी कह लीजिए आप या टैरो कह लीजिए। तो रश्मि जी, आपको पता है कि हम लोग 8th हाउस जब एक्टिव होता है तो लोगों को बहुत बार टैरो की रेमेडी देते हैं, क्योंकि हाँ टैरो जी। बहुत जल्दी सीख लेता है व्यक्ति। हाँ जी, मतलब एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट साइंस। वो तो आप एक जन्म कम है एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए। बट जैसे न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, दीज आर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज, मतलब आपको 2 मंथ्स में ही ये आ जाएंगे। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। आप लोगों को नहीं तो आप अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इसको यूज कर सकते हो। हाँ, और आप किसी को भी थोड़ा बहुत भी बताओ, इसको थोड़ा सा आप जब 8th हाउस एक्टिव हो तो उन दिनों में आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आओ, तो आपको 8th हाउस के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सारे नलीफाई हो जाएंगे आपके। हाँ और जी। आपको बल्कि एक नई विद्या सीखने का मौका मिल जाएगा। तो हाँ कहने जी। का मतलब ये है कि जो हमारे ग्रह हमसे चाहते हैं अगर हम वो करते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ओके। हाँ और जी। बाकी तो देखो सब ऊपर वाले के ऊपर है, जैसे हमारे कर्माज होते हैं उनका रिजल्ट हमें मिलता ही है। और जैसे रश्मि जी ने भी बताया कि धूप में आप छाता ले लो या बारिश में हम छाता दे दें, तो इतना काम हमारा रेमेडीज कर देती हैं। क्योंकि हम लोग जब रेमेडीज बताते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि ये साल 2 साल की प्रॉब्लम है, बाकी लाइफ तो मेरी ठीक है। तो उसको क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी मिल जाती है हमसे, एक उम्मीद मिल जाती है कि 1-1.5 साल में निकाल लूंगा और बाद में ये सब मेरा बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ और जी। इन सब एंड रेमेडीज के बाद, सॉरी रश्मि जी, मैं एक बात और कहना चाह रही हाँ थी। जी। हाँ जी। इन सब रेमेडीज के अंत में मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगी। हमने जितनी भी आपको रेमेडीज बताई, ये ग्रहों की हमने आपको रेमेडीज बताई, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में रेगुलरली हमेशा रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसको ये ग्रह गोचर कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। क्योंकि विष्णु जी जो है, आपको मालूम है उनका क्या स्थान है हमारे जीवन में। तो मेरे हिसाब से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And in the end, I would say that the most important remedy is connecting yourself to your Isht Dev. और साथ में आप कुछ चैरिटी भी करो, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। सो गॉड प्लस चैरिटी, दोनों अगर हम मिला के इनका सहारा लेते हैं, सो दैट विल निगेट द नेगेटिव कर्मास इन आवर लाइफ। तो आप कुछ अब एंड में आप बोलना चाहते हैं? हाँ, और मैं बस अब लास्ट में फाइनेंस के लिए आपको एक कुबेर जी का मंत्र देना चाहती हूँ। इसको आप 108 टाइम डेली चैंट करें। अगर 108 टाइम नहीं भी कर सकते तो चाहे आप इसको 2 बार, 4 बार, 11 बार भी अगर बोले तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्ध्यम में देहि दाप्य स्वाहा। यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। तो अंत में मैं ये आपको बताया है मंत्र, आप इसका जाप करें और कोई भी फाइनेंशियल इशू नहीं रहेगा। और अब मेरी और रश्मि जी की तरफ से हम अपने डायरेक्टर सर विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मेरे को चैट में कुछ लोग पूछ रहे हैं हाउ टू फाइंड अ इष्ट देव। तो देखो, इष्ट देव तो आपको जो पर्टिकुलर आपके इष्ट देव हैं, सो आपके वो चार्ट से ही पता चलता है। आपका 5th हाउस देखते हैं हम, 9th हाउस देखते हैं, एंड वी सी द D9 ऑल्सो। तो वो सब चार्ट एनालाइज करने के बाद ही आपके इष्ट देव कौन है, हम तभी पता चला सकते हैं उसके बारे में। और तब तक अगर आपको अगर इतना नहीं मालूम तो आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपके पंचम हाउस में जो राशि है, मान लीजिए मंगल की राशि है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र की राशि है
तो आप लक्ष्मी माँ की कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए वर्क करेगा। हाँ जी, चलिए अब हम इजाजत लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे हम आगे फिर से कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर। हाँ जी, थैंक यू।